Hello students, this is the third video on the chapter Money and Credit. In this video, we are going to read about the formal sector of loans and informal sector of loans. In the previous video, we had done till cooperatives societies, that how cooperative societies provide loan to their members. Now in this video we are going to read about the importance of formal sector credit in India, and also we learnt about the difference between the formal sector of credit and informal sector of credit. So if we talk about how cooperatives provide loans to their members, we come to know that we called it a formal sector loan. Like the various type of loan can be conveniently grouped in our country as a formal sector of loan and informal sector of loan. These are the two ways from which a person get the loan, whether he moves to the formal sources or to the informal sources. Of what are the formal sectors of loan? First is bank, another is cooperative. And what are the informal sources of loan? Informal sectors of loan, that are friends or traders, landlords, relatives, and other sources. As you can see in pie graph also, that how sources of credit per rupees 1000 of rural household in India in 2012, कि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया में लोन का एक ज़रिया क्या है? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. ऑल्दो होना क्या चाहिए कि रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हों, सो दैट कि जो पुअर पीपल हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े. बट अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे और इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री में फॉर्मल सोर्सेज जो हैं क्रेडिट के, उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन रिच पीपल करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर country. Now move to the text. We have seen in the above example that people obtain. Above example, they means that we have seen in cooperatives case that the various type of loan can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loans. Among the former are loans from banks. अब formal sector loan के कौन कौन से हैं? Banks, cooperative. Informal sectors कौन से हैं? Underline it. Money lender, trader, employers, relative. These this will come in 1 marks question. In graph 1, you can see the various sources of credit to rural household in India, and more credit coming from the formal sector or the informal sector. अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है वो किस सेक्टर में ज़्यादा दिया जाता है, फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल. तो हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज से हमारी कंट्री में ज़्यादा लोन लिए जाते हैं. अब नाउ हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ बैंक. अब वो किस तरह से सुपरवाइज करता है? वो हमेशा ये नज़र रखता है कि बैंक ऑलवेज कीप मिनिमम कैश बैलेंस विद दैम, दैट इज़ 15% they must have what the depositors deposit to the बैंक. उसका 15% वो हमेशा अपने पास रखेंगे. that observed by the RBI. Now the RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, RBI sees that banks give loan not just to the profit making business. Another way to keep eye on banks by the RBI is that bank always
sees that banks give loan not just for profit making businesses, कि जब भी बैंक लोन दें तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए रिच पीपल को ना दें जो उन्हें टाइमिंगली इंटरेस्ट दे सकते हैं, बल्कि ऑन द अदर हैंड उन्हें कल्टीवेटर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल बोरोवर्स को भी लोन देना चाहिए। तो इस पर नज़र कौन रखता है? RBI. Now, periodically banks have to submit information to the RBI to how much they are lending to whom at what interest rate. अब वो किस तरह से उन पर चेक रख सकता है बैंक्स पर RBI कि वो हर बैंक को ईयरली अपना पूरी रिपोर्ट सबमिट करानी होती है कि कितना परसेंटेज उन्होंने रिच पीपल को दिया और कितना परसेंटेज उन्होंने पुअर पीपल को दिया है। There is no organization which supervises the credit activities of lenders in informal sector. If we compare it with informal sectors of loan, we find out that RBI is there to check on formal sources of credit, but there is no any organization is there for informal sources of credit to check on them. कि फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर यानी बैंक्स के ऊपर तो RBI होता है नज़र रखने के लिए, लेकिन जितने भी हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज हैं क्रेडिट के, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। Now this is also very important difference between the formal sector of loan and informal sector of loan. अब this is the reason why इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं लोन के, वो अपनी मन मर्जी का इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ चूज देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल सोर्सेज अपनी मनी को वापस लेने के लिए कोलेट्रल रखते हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अनफेयर मीन्स। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं क्रेडिट के, वो इलीगल थिंग्स को भी, अनफेयर मीन्स को भी यूटिलाइज करते हैं अपने पैसे को वापस लेने के लिए। नाउ कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट. There they given the difference between the formal sector of credit and informal sector of credit. So first is formal sector of credit provided by the banks and cooperative, informal sectors of credit provided by money lenders, businessmen, traders, etc. अब formal sources charge less interest, informal sources charge more interest. Third one, they have given that formal sources cannot use unfair means to get their money back. On the other hand, informal sources use unfair means to get their money back. Compared to the formal lender, most of the informal lender charge a much higher interest on loan. Thus, the cost of the borrower of informal loan is much higher. अब this is the reason why वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स लाइक मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एट्सेट्रा। अब यही रीज़न है कि लोन लेने से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इनफॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि जितना वो लोन लेते हैं उससे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है और उतना ही उनको जो एक्चुअल मनी है वो भी सबमिट करानी होती है, तो उसकी हायर कॉस्ट रहती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ अ बोरोवर इज़ यूज टू रिपे द लोन। अब अगर हमने हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन ने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है, वो सारी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे उस लोन को चुकाने में ही लगा देता है। बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ इन सर्टेन केसेस, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ श्यामल इन सोनपुर. द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रिपेड इन ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ बोरोवर. तो समटाइम बोरोवर की इतनी इनकम भी नहीं होती जितना कि उसे लोन देना पड़ता है, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है.
दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट ट्रैप, अब जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, जैसे भी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, रमा के एग्जाम्पल में. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग may not do because of high cost of borrowing. अब some इंडिविजुअल्स who try to establish their enterprise, कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. यानी लोन लेना, बोरो करना मतलब लोन लेना, उनको बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि उन्हें उस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो इफ़ वी वांट दैट आवर कंट्री बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी इकॉनमी को बेटर करना है. इकॉनमी को बेटर करना तभी की जा सकती है जब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से डेवलप हुआ. ह्यूमन रिसोर्स कब डेवलप होगा? जब गरीबों को भी कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और वो तरह तरह का अपना बिजनेस कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, और तब हमारी कंट्री डेवलप बन पाएगी. तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ावा देना. नाउ फॉर दोज रीजन्स बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लर्न मोर. अब यही कारण है अभी जो हमने ऊपर पढ़े कि अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देने से बचना है, अगर हमें डेवलप होना है, अगर हमारी कंट्री से गरीबी को हटाना है, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करें एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करें. They could grow crop business, set up a small scale industry, they could set up new industries. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. कि बहुत ज़रूरी है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चीप क्रेडिट का होना, यानी सस्ता लोन मिलना. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट. अगर हम अपनी कंट्री में एनालाइज करें कि हमारी कंट्री में फॉर्मल सोर्सेज से रिच पीपल कितना लोन लेते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज से कितना लोन लेते हैं, और कंपेयर करें उसको पुअर पीपल से कि वो फॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लेता है और इनफॉर्मल सेक्टर से कितना लोन लेता है, तो यू कैन सी हियर कि पुअर हाउस होल्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से लोन ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से 85%, और फॉर्मल से कितना ले रहे हैं? 15%. यानी बैंक्स वगैरह से सिर्फ 15% ही वो लोन ले रहे हैं. 85% अभी भी कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से, फ्रेंड से, मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, जिसके पास थोड़ा बहुत संपत्ति है, वो भी ज़्यादातर लोन 53% किससे ले रहे हैं? इनफॉर्मल से, और 47 ले रहे हैं % लोग ले रहे हैं फॉर्मल से. ऑन द अदर हैंड जो अच्छे खासे परिवार हैं, जो अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं, वो ज़्यादातर लोन किससे ले रहे हैं? फॉर्मल से, और 28% ही वो किससे ले रहे हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से. ऑन द अदर हैंड रिच पीपल तो ज़्यादातर लोन बैंक से ले रहे हैं और कम लोन वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, जबकि उनकी कंडीशन सही है, वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. तो ज़रूरत क्या है कि हमारी अब जितने भी बैंक हैं वो भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करना चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट टाइमिंगली मिले. वो कौन दे सकता है? रिच पीपल दे सकते हैं. इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन किसको रिलीज़ करते हैं? रिच पीपल को. लेकिन उन पर नज़र किसने रखी हुई है? RBI ने, कि वो ना सिर्फ रिच पीपल को ही लोन दे बल्कि पुअर पीपल को भी लोन दें. ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, वो ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारी कंट्री में किस तरह से टाइमिंगली जो है रिच पीपल ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं. ऑन द अदर हैंड पुअर पीपल इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो कि गलत है. What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs to the rural people. कि फॉर्मल सोर्सेज सिर्फ आधे ही लोगों की नीड को पूरी कर पाता है, रूरल पीपल की. बहुत कम लोन देता है रूरल पीपल को, और रिमेनिंग जो क्रेडिट है
वो रूरल पीपल इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जो कि गलत है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर. अब इस तरह से जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं, लैंडर्स कौन है? जो लोन देते हैं. मनी लैंडर भी एक लैंडर है, ट्रेडर भी एक लैंडर है, जो भी पैसा दे रहा है. बैंक भी एक लैंडर है. बोरोवर कौन है? जो लोन ले रहा है. These are some terms that you must know before reading this chapter or before understand this chapter. So now thus it is necessary that banks and cooperative increase their lending particularly in the rural areas. अभी हमने जितना पढ़ा उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि it is very much important for the country like ours that informal sources of credit must not become high in our country, बल्कि किसको ज़्यादा होना चाहिए? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज क्रेडिट रिड्यूस. कि हमारी कंट्री में जब ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज होंगे, फॉर्मल सेक्टर्स ज़्यादा होंगे लोन देने के लिए, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर्स पर वो कम हो जाएगी एंड then we will become developed. Secondly, while formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि फॉर्मल सेक्टर जो हैं वो एक्सपेंड करें लोन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोन को एक्सपेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ले पाएँ. एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड. आज के टाइम की अगर हम बात करें, जो अभी हमने एनालाइज़ किया यहाँ पर, तो यहाँ हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द रिच पीपल गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज. बैंक्स वगैरह से ज़्यादा लोन कौन ले रहे हैं? रिच पीपल ले रहे हैं, जबकि लेना किसको चाहिए? पुअर पीपल को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन. तो इस तरह फॉर्मल क्रेडिट जो है, यानी फॉर्मल सेक्टर से मिलने वाला लोन जो है वो इक्वली मिलना चाहिए, रिच को भी पुअर को भी, तभी हम जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं. नाउ इन रूरल एरियाज सम अदर वेज ऑल्सो टू गेट द मनी. और उसमें जो रिसेंटली फीचर देखा गया वो क्या था? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs. Self help group. In the previous sector we have seen that poor household are still dependent on informal sector of credit. हमने ये देखा कि poor people अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा informal sources of credit पर निर्भर हैं. Banks are not present everywhere in rural areas. हर जगह available नहीं है. अब even when they are present, getting a loan from bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. अब वन मोर रीज़न इज़ दैट कि इनफॉर्मल सोर्सेज में इतनी रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इतनी टर्म्स कंडीशन नहीं होती हैं, इसीलिए किसान भी ये कोशिश करते हैं या रूरल पीपल ये कोशिश करते हैं कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन ले लें, बजाय इसके कि वो कागजातों के या डॉक्यूमेंटेशन के पछड़े में पड़ें. सो व्हाट दे हैड डिसाइडेड, क्या किया हुआ है उन्होंने डिसाइड कि वो किन से ज़्यादातर लोन लेना पसंद करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से, बिकॉज वो इंडल्ज नहीं होना चाहते डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि बैंक की जो कार्रवाई होती है लोन देने की वो बहुत ज़्यादा वाइडेंड होती है. नाउ डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल उनको देना पड़ेगा, बैंक से लेंगे. अब उनके पास कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इवन कोलेट्रल नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है. एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न. अब उनके पास सिक्योरिटी का ना होना, कोलेट्रल अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था कि कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है जो किसके पास है? बोरोवर के पास होता है. ऐसी उसकी कोई संपत्ति जिसको वो किसके पास रख देता है? जिससे लैंडर से वो लोन ले रहा है, ताकि लैंडर को अगर टाइमिंगली लोन वापस ना मिले तो वो क्या कर सकता है फिर? अगर उसे वापस नहीं मिलता है तो वो क्या ले लेता है? उनसे उस कोलेट्रल को बेचकर अपना पैसा वापस ले लेता है. इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट कोलेट्रल. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है
कि ये जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो उस बोरोवर को जानते होते हैं, तो यही रीज़न है कि वो कोलेट्रल की डिमांड नहीं करते, टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम पीरियड तक वो उसको सबमिट करा दें। द बोरोवर कैन एंड इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग द अर्लियर लोन। इवन हम अपनी कंट्री में ये देखते हैं कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उसमें लोन को पहले लोन को चुकाए बिना भी दूसरा लोन लेने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं और देने के लिए भी इनफॉर्मल सोर्सेज में वो रेडी रहते हैं। हावेवर द मनी लैंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि मनी लेंडर जो होता है बहुत हाई रेट इंटरेस्ट लेता है और किसी तरह का रिकॉर्ड भी नहीं रखता है ट्रांजैक्शन का, हैरास करता है पुअर बोरोवर को। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में भी, कि अभी हमने उसको पढ़ा था। नाउ इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज। अब कुछ सालों में हम देखें कि नए नए तरीक़ों को अडॉप्ट किया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन अ पर्टिकुलर विमेन, की क्या आइडिया है कि ऑर्गेनाइज करना रूरल पुअर को, स्पेशली विमेंस को, इन अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होता क्या है, लाइक आस पड़ोस में रहने वाले 15 से लेकर 20 तक मेंबर्स जो होते हैं वो अपना जो बचत होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी हो सकती है और 100 से 1000 रुपये तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल। कि मान लो एक एरिया है, उस एरिया में लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली ये जो SHGs है कहाँ पर होते हैं, रूरल एरिया में। स्पेशली कहाँ से स्टार्ट हुआ, विमेन से स्टार्ट हुआ कि अपनी बचत का कुछ हिस्सा वो इकट्ठा कर लेता है ग्रुप, और इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं कि उसे उस जो मनी इकट्ठी हुई उसको एज अ कोलेट्रल रखकर वो लोन ले सकते हैं। अब नाउ द ग्रुप इटसेल्फ सेविंग्स पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25, जैसे हमने कॉपरेटिव्स के केस में देखा, ऐसे ही SHG है, लेकिन SHG कॉपरेटिव्स के जितना इतना बड़ा नहीं होता है, इतना ज़्यादा पैसा उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों की जो सेविंग्स हैं उसी पर होता है, और वो भी रूरल पीपल की, रूरल पुअर पीपल की। नाउ डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, members can take small loans from the group itself to meet their needs। अब क्या होता है कि वो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, मान लो ये 15-20 मेंबर हैं इस SHG के, उनमें से किसी एक पर्सन को ज़रूरत है पैसे की, तो वो उस पैसे को जो उन सभी ने एक बार इकट्ठा किया था उसमें से उस पैसे को ले लेता है, और वो इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है ग्रुप की वो कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर देगा। These loans, but the group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges। अब मान लो 1000 या 2000 रुपये की ज़रूरत है किसी भी मेंबर को उस SHG के, तो वो SHG के इकट्ठे हुए जो मनी है उसमें से पैसा ले सकता है, और पैसा लेकर उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लगता है, लेकिन वो उस इंटरेस्ट से बहुत कम होता है जो कि मनी लेंडर्स लेते हैं। अब आफ्टर ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अब इसी तरह से हर महीने वो कुछ ना कुछ जोड़ के वो जो SHG है, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसने बनाए, बिगनिंग में रूरल पुअर्स ने, स्पेशली विमेंस ने अपनी जो सेविंग्स थी उनको इकट्ठा किया, 15 से लेकर 20 लोगों ने, और उसको जब साल भर हो जाता है, हर महीने वो इकट्ठा करते हैं, साल भर में काफ़ी पैसा हो जाता है इकट्ठा, तो वो बैंक से एज अ कोलेट्रल रखकर उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी कह रही हूँ मैं, दैट इज़ मनी को रख कर और फिर लोन ले लेते हैं, एंड इज़ मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। अब वो क्या कर सकते हैं कि मान लो कि SHG के पास 5 या 10 हज़ार रुपये साल भर में इकट्ठे हो गए, उन रुपयों को वो एज अ कोलेट्रल सबमिट करके और बैंक से लोन लेकर कुछ अगर छोटा मोटा अपना बिजनेस करना चाहती हैं वो लेडीज़ या वो पर्सन्स जिन्होंने SHG को फाउंड किया है जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने, तो वो कुछ मशीन्स लेकर अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इस तरह से
Small loans are provided to members of releasing mortgaged land for meeting working capital. और इस तरह से वो और क्या कर सकते हैं कि उन्होंने मान लो कि फील्ड है और फील्ड के लिए उन्हें कुछ फर्टिलाइज़र्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो वो वहाँ से उस लोन को लेकर ऐसे चीज़ से कर सकते हैं. Now, most of the important decision regarding the saving and loan activities are taken by the group members. अब वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, यानी वो जो 15-20 लोग हैं जिन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया था, वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह की लोन एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कितना लोन वो एक बारी में एक मेंबर को दे सकेंगे, कितना इंटरेस्ट वो उससे लेंगे. दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स. Now the group decide regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to charge, repayment schedule, also the group which is responsible for repayment. तो सबको डिसाइड किया जाता है उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, रीपेमेंट का क्या स्केड्यूल होगा, कब वो रिपे करेगा पर्सन, वो मेंबर उनके लोन को. ऑन द अदर हैंड अगर रिपेमेंट नहीं होती है तो कौन जो लोन है उसको सबमिट कराएगा. तो एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप. बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड poor women when organized SHGs even though they have no collateral as such. अब यहाँ पर ये भी बताया गया, जैसे मैंने बताया ना कि SHG है, SHG ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने अपनी बचत को इकट्ठा किया, साल भर में वो बहुत ज़्यादा हो गया. जब काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसको एज अ कोलेट्रल रख कर, सिक्योरिटी रख कर बैंक लोन देने के लिए रेडी हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, क्योंकि उनको पता है कि एक पर्सन को अगर लोन दे रहा है बैंक तो वो तो भाग कर जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो सारे नेबरहुड में ही रहते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल सभी एक साथ नहीं चले जाएंगे कहीं पर भी, तो वो किसी को भी उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स से पैसे को वसूल कर पाएगा बैंक. सो दिस इज़ द रीज़न वाई बैंक्स आर विलिंग टू प्रोवाइड लोन टू द SHGs. Now thus the SHGs help borrower overcome the problem lack of collateral. इस तरह से अब हम देखें कि एक जो पुअर पीपल है जो बैंक जाने से डर रहा है बिकॉज उसके पास कोलेट्रल नहीं है, तो वो SHGs में पैसा अपना लगाकर जब उसे ज़रूरत हो वो वहाँ से लोन ले सकता है और उसके लिए उसे कोई कोलेट्रल देने की भी ज़रूरत नहीं होती है. नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम अ फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट. अब SHGs की इम्पॉर्टेंस दी गई है कि ये जो SHGs हैं इसकी वजह से विमेन सेल्फ रिलायंट हो गई हैं. रेगुलर मीटिंग्स को जब वो अटेंड करती हैं तो वहाँ सिर्फ वो बैठकर यही बातें नहीं करती हैं पैसे से रिलेटेड, बल्कि वो कुछ सोशल इश्यूज़ पर भी डिस्कशन करते हैं, हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर. तो एक बहुत ही अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी ये वर्क करते हैं SHGs. SHGs की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नाउ वी मूव टू द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश प्रोवाइडेड लोन टू द पुअर पीपल एंड स्पेशली विमेन, and then they shows the example to all other countries that they must provide loan to the poor people to become economically strong or provide employment. Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success story in reaching to the poor, meet their credit needs at reasonable rate. कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है जिसमें पुअर पीपल को क्रेडिट अवेलेबल कराया गया रीजनेबल रेट्स पर. 1970s में एक स्मॉल प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ. ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज़ ओवर 8.63 मिलियन मेंबर्स उसके बने इन अबाउट 81,390 villages spread across Bangladesh. Almost all the borrowers are women. तो इतने एरियाज़ में ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है वो फैला हुआ है. मोस्टली जो उसकी बोरोवर्स हैं विमेन है, क्योंकि विमेन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है. तो पूरे सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनको ये अवेलेबल कराया गया. दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड नॉट ओनली आर पुअर विमेन रिलायबल बोरोवर्स.
but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. तो इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के इस स्टेप से ये प्रूव हुआ कि विमेन ना सिर्फ एक रिलायबल बोरोवर हैं, बल्कि वो नया नया छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं. नाउ इन समिंग अप में दिया हुआ है इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है. व्हाट वी हैड लर्नड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर की बिगनिंग में हमने किया वैरायटी ऑफ बिगनिंग में तो हमने किया था कि ग्रेजुअली मनी किस तरह से चेंज होती रही थी टाइमिंगली. बैंकिंग सिस्टम क्या था. ऑन द अदर हैंड वी हैव डन दैट क्रेडिट एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हमने पढ़ा. ऑन द अदर हैंड वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू प्रोवाइड क्रेडिट और लोन, जिसमें हमने फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को रीड किया. एंड एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर, और हमने कंपैरिजन किया that how in our country rich people get more loan from the formal sector and poor people get loan from the informal sector, and that is not good for the development of the country. So what we required that formal sources of credit or formal sector of credit must be provided to the poor people of the country. And secondly, also poor should get a much greater share of formal loans